Hi friends, welcome back to my channel and this is Santosh sir. And today we are solving MCO 05 June 2021 exam paper. And as you can see on your screen that this is the previous year's question paper and there are a total of 8 questions. Out of that 5 questions are theory questions and 3 are numericals. So we will work out all the questions and make sure that you will watch this video till the end because I'm going to solve all the numericals. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम सिक्योर मार्क्स सिक्योर करने के लिए. एंड again I will be requesting you to kindly subscribe my channel and also share it to your friends, right? So let's start with the first question. And the first question is, as you can see here, distinguish among variable, fixed and semi variable cost. Why is this distinction important? Explain with examples. 10 plus 10 20 marks का क्वेश्चन है and there are two parts of this question. Let's see the solution. ये मैंने यहाँ पे इसका solution लिखा है बॉक्स बना के. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. हालांकि हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते ही हैं, जैसे कि दिस कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव of the change in the production, and variable cost they change with the volume of production, and semi variable cost they are a combination of fixed and variable cost. In the same way, second distinction, fixed cost decrease with increase in production, whereas variable cost increases with increase in production, and they also increase with the increase in production. And the third difference is fixed cost, the prices of this cost do not change in the short run, and but the variable cost, their prices changes in the short run and their prices may or may not change, semi variable cost. And the fourth distinction I have written examples, examples of fixed cost. Now rent, salaries, cost of machines, tools, equipments, so these are all fixed costs. And variable cost, direct materials, raw materials, wages, fuel, power, commissions of the salesman and all that. And semi variable, telephone bills, repairs, depreciation, power and all that. So these are all semi variable costs. So like this you can explain. Okay, now let's move on to the second part of the question. And this is the second part of the question was why is this distinction important for a firm? Now I have written here 5 points for this. Okay, why this distinction is important, why company divide the costs into fixed, variable and semi variable cost. Now first, it helps in profit planning. Second, it helps in to control the costs, right? Then it helps to fix the prices of the commodities and services. It helps to prepare budgets, and it helps in managerial decisions. So that's all in the first question. Let's move on to the second question. And as you can see here in the question paper, this is the second question. What is the cash flow statement? Explain the techniques of preparing a cash flow statement. How does cash flow analysis help the management in decision making? So this is the question. Okay, and my dear friends, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे 4 वीडियोस हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो से मिल जाएगा और ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल एग्जाम्स में. तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Define budgetary control. List out the essentials of sound system of budgeting. Classify budgets on the basis of flexibility. Now ये question आपके TMA के एग्जाम्स में आया था, right? TMA assignments. तो यहाँ पे मैंने assignment, ये आंसर इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. And the question was define budgetary control. Now we can start from here, right?
budgetary control is a tool of control to achieve the budgeted goals. It may be defined as the establishment of budgets relating to the responsibilities of executives to the requirement of a policy and continuous comparison of actual with the budgeted results, either to secure by individual action. The objectives of the policy is to provide the basis for revision. Okay, in short, budgetary control is a system and a technique which uses budgets as a means of controlling all the aspects of business. सो लाइक दैट मैंने इसके ऊपर काफ़ी लंबा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, राइट? तो आप भी इसको बजटरी कंट्रोल स्पेशली बजट को कंट्रोल करता है एंड कॉस्ट को मिनिमम करता है. सो दैट्स द मेन ऑब्जेक्ट. नाउ देखते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट, लिस्ट आउट द एसेंशियल्स ऑफ ए साउंड सिस्टम ऑफ बजटिंग. तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है दैट as you can see on your screen, the essentials, right? The first one, budget center, right? Budget center के ऊपर short notes भी आता है. It refers to different sections of an organization where budgetary control measures are to be applied, and budgets are prepared in consultation with budget center heads, and different centers are made to control cost. Okay, fine. And the इसके एसेंशियल्स में कम से कम आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और मिनिमम 5 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने हैं. जैसे बजट सेंटर हो गया, बजट कमेटी, बजट ऑफिसर, बजट मैनुअल, बजट पीरियड और बजट की फैक्टर. तो ऐसे फर्स्ट 5 आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. Now let's move on to the next question, and the next question is this. The next question is, define responsibility accounting. How does it differ from conventional cost accounting? List out the various uses of responsibility accounting. So इसका आंसर यहाँ पे है. Okay, as you can see on your screen, this is the answer. Responsibility accounting is a system of management accounting where specific individuals are made responsible for accounting in particular areas of cost control. If the cost increases, the concerned person is held responsible for that. And in this system, responsibility is assigned on the basis of knowledge and skills of the person, right? So this is responsibility accounting. इसके ऊपर भी short notes कभी कभी आ जाता है लिखने के लिए, so be particular. Now let's move on to the advantages. What are the advantages of this? It helps to establish a system of control. It helps to compare the actual data with the budgeted data. It helps to reduce cost. It helps in managerial decisions. It motivates an employee to work hard. That means morale increase करता है. And it leads to specialization. Okay, fine. So let's move on to question number 5. Question number 5 के 2 parts हैं. ये पहला पार्ट है, डिफाइन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. 5+5 यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, जिसको हम लोग पॉपुलरली ABC बोलते हैं. ABC इज ए मेथड ऑफ असाइनिंग ओवरहेड and indirect cost to products. It helps to control costs and frame an appropriate pricing strategy. And the following steps are taken in activity based costing. And what are the steps? As you can see on your screen, I have written here 4. Identify all the cost to manufacture a product, dividing each activity into cost pools. Each cost pool is assigned cost drivers like units and hours, and calculating cost driver rate. So like that. Fine. Now the second part of this question, and the question is how it is different from traditional costing, right? Activity based costing और traditional costing, इन दोनों का difference आपको लिखना है. Now traditional costing में only product costs are taken, and here it allocates periodic costs. Traditional costing में easy to implement, but ABC is difficult to implement or execute. And traditional costing can be used for external reporting, whereas ABC cannot be used. And fourth one,
Traditional costing is based on single overhead rate, whereas ABC is based on multiple activity rates. That means different rates यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे लेबर रेट, वेज रेट, ऐसे. Okay, let's move on to question number 5, part B. Okay, and this is the question. What are the limitations of marginal costing? Again, marginal costing भी बहुत important है. इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चन एग्जाम्स में स्ट्राइक करता ही करता है. वेरी इंपॉर्टेंट वन. नाउ सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन. It is a costing technique where marginal cost such as variable cost is charged units of cost and fixed cost is written off. That means only यहाँ पे variable cost को consider किया जाता है and fixed cost को written off कर दिया जाता है, right? In simple words we can say that it is the change in the total cost when one additional unit of commodity is produced. So like that you can expand this definition. Then let's move on to its limitations. Now limitations मतलब disadvantages more or less. First, classification of cost is difficult. Cost को different classes में divide करना it's difficult. It is expensive. It is not suitable for external reporting. It lacks the long-term goals and not suitable for all types of organization. And lastly, it undervaluates the stocks. So this is how question number B goes. So let's move on to the next question. Question number 6, and ये है numerical, as you can see here on your screen. And the numerical is: a company is producing a single product and sells it at rupees 20 per unit. Variable cost 12 per unit and fixed cost rupees 80,000 per annum. Now you have to calculate break-even point, PV ratio, that is profit volume ratio, and sales volume required to earn a profit of 60,000 per annum. So this is the question and let's see. इसका solution मैंने यहाँ पे बनाया आप लोगों के लिए, right? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी आपको मिल जाए. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं दैट सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है. जैसे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है. That's selling price minus variable cost, SP minus VC. तो जैसे कि आप क्वेश्चन में दिया हुआ है the selling price is 20 and variable cost is 12, तो इसको माइनस किया you get 8, right? Now आपको सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है that is 80,000, right? And divided by contribution 8, so you get 10,000 units, right? Then break even point in units और break even point in value, ये दोनों को आपको फाइंड आउट करना है और दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है. यूनिट्स में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. नाउ पीवी रेशियो को आपको पहले फाइंड आउट करना है. पीवी रेशियो निकालने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला, टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स. ठीक है. नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया 8 रुपीज़. ठीक है. और कंपनी 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो यू विल मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स. नाउ टोटल सेल्स मीन्स दिस यूनिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. ओके. 10,000 इंटू 20 रुपीज़. 20 रुपीज़ इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो यू विल गेट टोटल सेल्स. सो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स, इसको डिवाइड करेंगे, यू गेट 0.4 और 2/5. ठीक है. तो ये आ गया आपका पीवी रेशियो. नाउ इस पीवी रेशियो को लेके आप ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अगेन 80,000 डिवाइडेड बाई 2/5 और 0.4, सो यू गेट 2 lakhs एज ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू. तो अगर क्वेश्चन में अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है तो यूनिट्स और वैल्यू दोनों ही फाइंड आउट करने हैं. ओके. इस क्वेश्चन का देखिए सेकेंड पार्ट में आपको बोला है, सॉरी पीवी रेशियो हो गया. थर्ड पार्ट,
सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर एनम, ठीक है। तो सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न 60,000 प्रॉफिट, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगेन इसका यूनिट्स फिर इसका वैल्यू, ये दोनों निकालना है। यूनिट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू नो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 60,000। तो ये 60,000 आपको यहाँ पे लेना है, राइट। सो 60,000 80,000 प्लस 60,000 होल डिवाइडेड बाय 8, तो यू विल गेट 17,500 यूनिट्स। नाउ इसकी अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। वैल्यू के लिए अगेन पीवी रेशियो, जहाँ पे आपको वैल्यू के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आपको पीवी रेशियो लेना है, और इन टर्म्स ऑफ यूनिट जब फाइंड आउट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये दो चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी फॉर्मूला में ज़्यादा चेंज नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आपको चेंज करना है पीवी रेशियो में। अगेन यू यूज दिस एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। This is the question number 7. Now I will read out the question. During the year 2017, S Limited made sales of 8 lakhs. ठीक है, sales 8 lakh sales है. Its gross profit ratio is 25% and net profit ratio is 10%. The stock turnover ratio is 10 times. Calculate gross profit, net profit, cost of goods sold and operating expenses. ये चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगता ही नहीं है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नाउ सेल्स आपको दिया हुआ है 8 लैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 10 टाइम्स, दैट मीन्स 10:1। तो you have to find gross profit. Gross profit के लिए straight away 25% of 8 lakhs you get 2 lakhs. नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज 10% ऑफ 8 लैक्स, दैट इज 80,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको फाइंड आउट करने के लिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं इसको। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स 8 लैक्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने यहाँ पे फर्स्ट आंसर में जो निकाला है 2 लैक्स, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू गेट 6 लैक्स. नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यू नो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, इनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यू गेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज 1,20,000. बिकॉज जनरली यू नो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स सेलिंग एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रीट करते हैं इन सब एक्सपेंसेस को. तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लेके फिर सारे एक्सपेंसेस को उससे माइनस करके निकालते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे सेम प्रिंसिपल यूज़ करना है. सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या चीज़ क्वेश्चंस में दी हुई है. Now this is question number 8. The following information is supplied to you. Standard time for a month 4,000 hours. Standard wage rate 2 rupees 25 paisa per hour. Number of laborers employed 30. Average working days in a month is 25. Number of hours a worker works per day is 7 hours. And total wage bill in the month is 13,125 rupees. And idle time due to power failure is 100 hours. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स बुक में एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं. एंड मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन. और ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है. 4 क्वेश्चंस हैं. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूलाज याद रखने होंगे. बिना फॉर्मूला के आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो try to learn the formulas, practice the formulas. Now let's start the solution. Standard time 4,000 hours, this is given. Standard wage rate 2 rupees 25 पैसा, ये भी दिया हुआ है. Actual time ये आपको फाइंड आउट करना है. Actual time, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे 30 है. 25 डेज वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. मतलब एवरेज वर्किंग डेज इज 25, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है.
एंड डेली वो लोग 7 आवर्स काम करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट एक्चुअल टाइम ऑफ वर्क. ठीक है. इसके बाद में हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल वेज रेट. एक्चुअल वेज रेट को फाइंड आउट करने के लिए टोटल वेज बिल, ना ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,125 रुपीज़ एंड एक्चुअल टाइम. एक्चुअल टाइम जो भी आप लोगों ने फाइंड आउट किया 5,250 आवर्स. तो इसको जब डिवाइड करेंगे वी गेट एक्चुअल वेज रेट. राइट. तो स्टैंडर्ड वेज रेट और एक्चुअल वेज रेट, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम, ये चार चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. दैट्स वाई अब ये चार चीज़ें अपने पास में आ गई. नाउ वी कैन फाइंड जो आपको क्वेश्चन में बोला है. द फर्स्ट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस. इसके लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट. नाउ स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट. तो यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड टाइम इज़ 4,000 आवर्स और स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज़ 25 पैसा. राइट. लाइक दैट एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट. तो एक्चुअल टाइम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि ये चारों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड इट सेज लेबर रेट वेरिएंस. ये आपको फाइंड आउट करना है. राइट. इसका फॉर्मूला एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस एक्चुअल लेबर रेट. ठीक है. अगेन स्टैंडर्ड लेबर रेट और एक्चुअल लेबर रेट ये ऑलरेडी गिवन, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपीज़ 25 पैसा एंड एक्चुअल रेट इज़ 2 रुपीज़ 50 पैसा जो हम लोगों ने निकाला. अब इसके साथ में एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे यू गेट लेबर रेट वेरिएंस. लाइक दैट पार्ट सी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. नाउ एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड लेबर रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम. आपने देखा होगा कि हर फॉर्मूला में ये स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, कहीं पे स्टैंडर्ड लेबर रेट और एक्चुअल लेबर रेट है, कहीं पे स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एक्चुअल लेबर कॉस्ट. तो यहाँ पे कॉस्ट, रेट और टाइम ये तीनों के ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने. इजी है, नॉट हार्ड. सो ये आपको यहाँ से निकल जाएगा. राइट. स्टैंडर्ड लेबर रेट 2 रुपीज़ 25 पैसा, स्टैंडर्ड टाइम 4,000 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम 5,250 आवर्स. सब ट्रैक करके मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट द आंसर. द लास्ट वन लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. आइडल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है. आइडल टाइम इज 100 hours into standard rate 2 रुपीज़ 25 पैसा. So you will multiply and you will get the answer. So friends, that's all in this video and I will ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मार्क फेचिंग है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा बिकॉज ये जो सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं देखो कितने छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं. तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा. तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, ट्राई टू प्रैक्टिस मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स इन MCQ 05. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड वन थिंग मोर कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जो नोट्स हैं वो आप शेयर कीजिए PDF में. सो YouTube पे तो शेयर करना मुश्किल है. आई विल शेयर द लिंक माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो. Right. So friends, that's all in this video and see you in the next video. Thank you for watching.